Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the 21st chord of Birth Alive Story Circle, the chord that connects one life to the other. I'm your host and host, Neha Bakkal, who flows with you in your journey of pregnancy, labor, birth, and postpartum. Hence, a certified birth doula and a traditional birth keeper. Our today's guest is Sister Rahat. She is a PG in chemistry, a student of Quran, and she teaches Sira. She is mother of two boys, the eldest being, and she's among the eldest in five siblings. Wow. She teaches mathematics, chemistry, tajweed, Sira, and Quranic Arabic. She's an entrepreneur. Her hobbies are painting, writing, exploring nature, and she believes that life should be led consciously and with purpose. She's also trained in life coaching and she practices NLP under her teacher Bushra Yahya. So I'm so glad that she's here today. Sister Rahat, welcome. And here's your platform. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sneha. And to So, all the Sister Rahat, we would participants. continue with your pregnancy journey, your birth, and like you had two births. So, first pregnancy birth, and the second journey of your pregnancy and birth, inshallah. Okay? Okay, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Am I audible, Sneha? Yes. Clearly? Okay. So, my first pregnancy was 7.5 years back. In fact, today is my first eldest son's birthday. So, it's been 7 years since my first cesarean. Today was the day I had my first C-section. Wow, And what a day to yes, share the story, right? yes. I was just reflecting on this. What a day I am telling my birth story on this day only. So yes, Alhamdulillah, my first pregnancy was like I had a ovarian cyst. Before marriage, I got to know that I have an ovarian cyst. So after my marriage, we operated for the ovarian cyst since the doctor said, "Okay, if you have this much bigger cyst, तो ovary निकालनी पड़ सकती है, and you can have lesser chances of having a child." So with that fear, I removed that cyst, not my ovary. I removed that cyst with an laparoscopic surgery. Then afterwards, वो उनका जो होता है ट्रीटमेंट का मेथड कि कंसीव हो जाए. So within 6 months, I conceived, Alhamdulillah. And throughout that pregnancy, Alhamdulillah, that pregnancy was कोई इतने complications नहीं थे, कोई ऐसा मसला नहीं था. Throughout the pregnancy, doctors were not ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था सी सेक्शन करना पड़ेगा या इस तरह से. जस्ट उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतना मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था. एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देयर वाज सम स्ट्रेस अराउंड इन माय, मतलब वो नई नई शादी, न्यू घर और सब चीज़ें बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रही वो प्रेगनेंसी. बट यस, ऐसे कोई विजुअल कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कोई विजिबल ऐसे इश्यूज नहीं थे जिसकी वजह से सी सेक्शन हो. बट सिंस आई वाज अनअवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड लेबर एंड बर्थ, तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था. एंड आई गॉट पैनिक्ड एंड आई रैन टू द हॉस्पिटल. जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में गए, तो दे सेड के कितना पानी गया है. तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि पानी, मतलब वाटर ब्रेक हुआ है, कितना पानी गया, हाउ कुड आई टेल. तो डॉक्टर सेड के एक ग्लास गया है, उससे ज़्यादा गया है. तो आई वाज इन, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं उनको कुछ क्लियरली बता नहीं पा रही थी. तो जस्ट दे आस्क्ड मी टू वेट, वॉक करने के लिए बोला कि देखो आते हैं क्या पेन्स वगैरह. सो अराउंड हाफ एन आवर, उसके बाद उन्होंने वो एनएसटी और समथिंग, जो बेबी का मूवमेंट और हार्ट रेट चेक करने के लिए मशीन होती है, दे अप्लाइड दैट. एंड उसमें मुझे कहा कि जब भी मूवमेंट फील होगी तो यू जस्ट प्रेस द बटन. तो मैंने, वैसे मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था, आई वॉज जस्ट इन वेरी शॉक और पैनिक, इसमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था. तो मैंने बहुत देर देर से, मुझे ऐसा, मैं बहुत ध्यान दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस अंदाजे से मैं बटन प्रेस कर रही थी. बट दे सेड के बेबी के हार्ट रेट जो है वो लो हो रही है, बेबी को सफोकेशन हो सकती है अगर वाटर ज़्यादा पे, सफोकेशन हो सकती है बेबी को इस तरह से. So they asked us, के we have to do a C-section. And
देयर वाज नो वन टू टेक अ स्टैंड कि नहीं हमको नहीं कराना है, नॉर्मली करना है। इवन आई वाज नॉट इन दैट माइंडसेट के नहीं बोलूं या कुछ भी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। सो आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ fear of saving my and my baby's life, we agreed for a C section. जब उन्होंने सी सेक्शन के लिए कंसेंट पेपर साइन करके लिया, it was around 6 p.m. in the evening, and they operated me like 9 o'clock को मेरा baby was I was operated, and the 9 o'clock baby was born. So this thing was something that stuck in my mind afterwards. मैं उसके बारे में सोचती थी कि मतलब उन्होंने इतनी इमरजेंसी थी कि अगर बेबी को सफोकेशन हो रहा है तो व्हाई नॉट एकदम इमरजेंसी में क्यों नहीं किया, फौरन क्यों नहीं लेके 2 hours इफ दे कुड हैव वेटेड। तो क्या सही था ये सी सेक्शन होना, और इस तरह से मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन थे। बट देन इट वाज अ बॉय, इट वाज अ बेबी, हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ था और इस तरह से था, तो मैंने उसको उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने जहन से पीछे धकेल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सेड अल्हम्दुलिल्लाह कैसे भी बेबी हो गया, क्योंकि वो फियर पहले से था कि कंसीव होगा कि नहीं होगा, तो बेबी हो गया। आई वाज लाइक हैप्पी। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि जो मेरे बेबी को मालिश करने के लिए जो आते थे, शी वाज अ दाई and a very nice woman, although she was very old at that time. She introduced me to home births. जैसे अभी तो मैं बकायदा नॉलेज ले रही हूँ, बट मेरे दिमाग में जो पहला सीड डाला था वो उन्होंने डाला था कि होम बर्थ इज पॉसिबल एंड हाउ दे डू इट ट्रेडिशनली एंड ऑल दैट। तो वो मेरे जहन में उस टाइम पे वो पड़ गया था। लेटर ऑन 6 years फास्ट फॉरवर्ड, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी जो है 2024 में 2024 में हुई। एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी लाइक श्योर कि मुझे सी सेक्शन नहीं होना है इस बार। आई ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। टिल दैट टाइम आई वाज लाइक नॉर्मल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट था, नेचुरल बर्थ का कोई कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था नहीं। देन वन डे माय फ्रेंड आयशा, उसके साथ में मेरी बात हो रही थी, तो आयशा आस्क्ड मी कि आर यू इंटरेस्टेड इन नेचुरल बर्थ और समथिंग। सो मुझे लगा आयशा इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी ओनली। सो आई सेड हाँ, आई डेफिनेटली ट्राई फॉर इट। सो शी गेव मी योर नंबर। इससे पहले भी आयशा ने होम स्कूलिंग के सिलसिले में आपका नंबर दिया था, बट उस टाइम पे मैंने कांटेक्ट नहीं किया। बट दिस टाइम अराउंड आई सेड कि नहीं, आई वांट टू नो व्हाट इज दिस। देन आई कांटेक्टेड यू, और हमारा जब फर्स्ट सेशन हुआ था अराउंड मेरी 5th or 6 months ऑफ मेरी प्रेगनेंसी उस टाइम पे। सो उस टाइम पे आपने जो चीज़ें मुझे बताई थी कि वाटर ब्रेक होने के बाद में भी 3 to 5 days वेट किया जा सकता है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस के जिसमें सी सेक्शन बिल्कुल ये हो जाता है कि रूल आउट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ों से मेरा जहन थोड़ा खुला, एंड आई थॉट के बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता हैं। फर्स्ट टाइम पे भी नहीं पता थी, अभी तक भी नहीं पता है, आफ्टर 6-7 years भी नहीं पता है वो चीज़ें। देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड, और ही ऑल्सो एग्रीड के दैट टाइम हमको नहीं मालूम था कि हम क्या डिसीजन लें, एंड नोबडी वॉज देयर टू गाइड अस राइटली। गाइड कोई गाइड करने के लिए भी था नहीं कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है। वी बोथ अग्रीड के हमारा डिसीजन था, हम दोनों मतलब ही गेव द कंसेंट, एंड मैंने भी उस चीज़ को ये किया था। सो देन वी डिसाइडेड कि हम बर्थ क्लासेस लेंगे। सो अराउंड in December, January, we took the birth classes with you. So during the birth classes, जो concepts, जो चीज़ें मेरे सामने आई, that उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसे दिमाग मेरा खुल गया कि is this possible। और मैंने उस टाइम पे सिस्टर शाजिया करके एक थी, उनकी मैंने बर्थ स्टोरी आपके सर्कल में सुनी थी, यूट्यूब पे देखी थी बाद में। सो शाजिया की जो बर्थ स्टोरी थी वो मुझे बहुत स्ट्रक की, उसने उस स्टोरी ने मुझे स्ट्रक किया कि इतनी आसानी से, इतने मतलब साइलेंटली, कामली, एंड जस्ट द प्रेजेंस ऑफ टू पीपल, टू वुमेन, यू एंड हर सिस्टर, और पूरे भरे घर में किसी को पता नहीं होते हुए बर्थ हो सकती है। शी मेंशन के देयर वर नो लाइट्स, यू वर मैनेजिंग इन द फोन की टॉर्च में। सो वो जो विजुअलाइजेशन था उस टाइम पे, वो बहुत मुझे ना बहुत अपीलिंग लगा कि उस चीज़ को मैं, सिंस आई वाज डूइंग माय प्रैक्टिसेस विद माय टीचर बुशरा याया,
तो वो विजुअलाइजेशन और वो सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। तो आई सेड कि अगर ऐसे हो सकता है सो व्हाई शुड नॉट ट्राई फॉर इट और गो फॉर इट। सो उन चीज़ों को मैं फिर काफ़ी डिस्कस करती रही, और जो नॉलेज मुझे मिली इन द क्लासेस, उन चीज़ों ने बहुत एनलाइटन किया मुझे कि बर्थ के अराउंड में, लेबर के अराउंड में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, हमारी एनाटॉमी कैसी है, बर्थ पोजीशंस एंड एपिसियोटोमी के बारे में, ये सारी चीज़ें जब समझ में आई तो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड डू समथिंग, कि कुछ तो ट्राई करना चाहिए वी बैक के लिए। और उस टाइम तक जो मेरी गायनेक थी, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा था कि सी सेक्शन ही होगा। शी वॉज वेरी पॉजिटिव विथ मी कि नहीं, इट्स बहुत अच्छा तुम्हारा गैप है 6 years का, सो इट इज़ पॉसिबल नॉर्मल डिलीवरी एंड एवरीथिंग। एंड 5th-6th मंथ में जो है उन्होंने मेरा एक टेस्ट करवाया था। हाँ, मुझे इस चीज़ से बड़ी इरिटेशन होती थी, वो हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ टेस्ट, स्कैन्स वगैरह बोलते थे, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ इतना नहीं हुआ था मेरा। सो मैं उस चीज़ से बड़ा इरिटेट होती थी, और 5th और 6th मंथ में उन्होंने वो डबल मार्कर टेस्ट बोला था। जब उन्होंने डबल मार्कर टेस्ट करवाया तो सिंस आई वाज 38-37 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम जब डबल मार्कर टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो है कैलकुलेटेड रिस्क करके आया था कि आई वाज एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग द, यस, higher risk of having the baby as any syndrome or brain issues, इसके हायर इस पे। तो आई चेक्ड अबाउट उसको रिपोर्ट को और उस चीज़ को ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया। सो आई फाउंड आउट कि ये सिर्फ मेरे एज फैक्टर और सर्टन फैक्टर्स के कैलकुलेटेड रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज श्योर एंड शॉर्ट ऐसा ही होगा। समटाइम्स इसमें मुझसे कम एज वाली औरतों को, मेजॉरिटी मैंने फाइंड आउट किया कि रिसर्च में, कि मुझसे कम एज वाली औरतों के ही बेबीज को जो है ये सिंड्रोम वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और ये जो कैलकुलेटेड रिस्क है तो वो कहाँ तक सही है, ये सब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये किया, मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि ये ऐसा है और ऐसा है। सो डॉक्टर आस्क्ड मी कि तुम एक और टेस्ट करवा लो विद कंफर्मेशन कि ऐसा है क्या, कोई सिंड्रोम है क्या बेबी को, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या। एंड वो टेस्ट भी यहाँ मेरी लोकेलिटी में नहीं होता है, मुझे यहाँ से दूसरे सिटी में जाके वो टेस्ट करवाना था। सो आई आस्क्ड द डॉक्टर कि अगर पॉजिटिव आता है सो व्हाट विल यू सजेस्ट, इज देयर एनी सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो शी सेड नो, हम कुछ नहीं कर सकते अगर उसमें कुछ आता है। तो मैं बोली देन व्हाट यू विल सजेस्ट। शी सेड के हम बेबी को अबॉर्ट करने का कह देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी। तो मैंने उनको कहा कि अगर मुझे एनी हाउ टर्मिनेट नहीं करना है तो शी सेड कि अगर तुम्हारा डिसीजन फर्म है देन डोंट गो फॉर द टेस्ट आल्सो। आई सेड ओके, मुझे एनी हाउ आए चाहे नहीं आए, कुछ भी आए उसका, वो मुझे बिल्कुल टर्मिनेट नहीं करना है। और इस टाइम पे मेरी एक कोच फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग नाउ। तो मेरी उसके साथ में डिस्कशन हुई और उन्होंने काफ़ी जो है मेरे साथ में उस टाइम पे फियर के अराउंड में और ये टैक्टिक्स के अराउंड में मेरी डिस्कशन हुई थी। एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव के डोंट मतलब डू व्हाटएवर योर इंस्टिंक्ट्स टेल यू। सो आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट गो फॉर द टेस्ट। देन उसके बाद में जो है इन द 7th और 8th मंथ डॉक्टर ने एक स्लाइड मुझे वो दिया, हिंट दिया कि वी विल डू अ स्कार थिकनेस का टेस्ट जो है हम करेंगे। 2.3 mm या उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका जो प्रीवियस स्कार है उसकी थिकनेस। सो उसके बाद हम लोग अगर वो उतना रहता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा बलबॉन होना स्टार्ट हुआ कि शी इज़ अगेन मतलब थ्रोइंग अ फियर टैक्टिक अपॉन मी। एंड आई न्यू कि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो व्हाट शी विल टेल। तो मैंने उस टाइम से अपना जो है माइंड थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अगर वी बैक करना है तो वो थोड़ा मेरे ही मेंटल उसका काम रहेगा, और मुझे को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। बट उस वक्त भी ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि मैं वी बैक करूंगी, होम बर्थ करूंगी, ऐसा कोई प्लान नहीं था। अ, मेरे कुछ फियर्स थे, कुछ ट्रॉमास थे और कुछ फोबियाज थे। तो उन चीज़ों को मैंने मेरी टीचर बुशरा याहिया के साथ में डिस्कस किया। शी टॉक टू मी और उन्होंने कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई थी जो हम एनएलपी और उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि वो फोबियाज और फियर्स को जो है रिलीज करने के लिए।
तो मैंने वो चीज़ें भी करना शुरू कर दी थी उस टाइम पे। आई वॉज वेरी एक्टिव। आई वॉज टीचिंग केमिस्ट्री टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो मेरा डेली अप एंड डाउन मतलब आना जाना रहता था काफ़ी अच्छी। मैं वॉक कर लेती थी एवरी डे। मेरा वर्कआउट रूटीन था एवरी डे 10 to 15 मिनट्स तो मिनिमम मैं करती ही थी रोज़ाना। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। हैड प्रोटीन वाटर हर चीज़ का इंटेक जो है इस बारी मैंने प्रेगनेंसी में काफ़ी मैंने उसके अंदर अपना एफर्ट्स डाला था कि ये सब मैं मेंटेन करके चलूँगी इस प्रेगनेंसी में। एंड जो लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर ने कहा कि जब 9th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, ओके 9 मंथ स्टार्ट होने से पहले व्हाट हैपेंड के 1st Feb को आई वेंट टू द डॉक्टर एंड शी रोट दैट स्कार टेस्ट। तो एंड शी सेड क्लियरली वेरी क्लियरली कि अगर ये 3 mm से कम आता है तो वी विल नॉट डू अ नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्राई भी नहीं करेंगे। तो मेरे माइंड में वो सारे फियर्स जो थे, जो मेरे ओवेरियन सिस्ट को लेकर थे, मेरे फर्स्ट सिज़ेरियन को लेकर थे, फिर ये डबल मार्कर टेस्ट, तो वो टाइम हर टाइम पे जो फियरफुल कंडीशन रहती थी, वो चीज़ वापस आ गई। वो मुझे सारे फियर्स अलाइव दिखाई देने लगे और एकदम से वो सब चीज़ें जो ना बहुत सवार हो गई थी ज़हन पर। और उस टाइम पे काफ़ी मैं स्ट्रेस में आ गई थी। इट वाज़ अराउंड 1st 2nd फेब और 5th या 6th फेब को फिर जो है मुझे थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्शंस और हल्का-सा ब्लीडिंग हुआ था। सो आई डिस्कस्ड विद स्नेहा कि स्नेहा ऐसे हो रहा है। बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर घर में हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया था कि अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा सिंस आई एम ब्लीडिंग। स्नेहा से मैंने बात की, स्नेहा को बताया स्नेहा ऐसे-ऐसे हो रहा है। स्नेहा सेड के डोंट गो फॉर द टू द डॉक्टर राइट नाउ, जस्ट वेट, ऑब्जर्व योर कंडीशन के कॉन्ट्रैक्शंस का पैटर्न हो रहा है क्या और कुछ और हो रहा है क्या। बट विदिन 1 or 2 days मेरे हस्बैंड मुंबई में थे, वो आ गए। मेरा बेटा भी मुंबई में था उनके साथ में, वो दोनों आ गए। व्हेन दे केम बैक टू मी एंड वी ऑल वेंट टू अनदर हाउस, फिर सब सेटल हो गया। 2-3 दिन में आई वाज बैक टू नॉर्मल। देन मेरे हस्बैंड कुछ दिन उन्होंने वेट किया 8 डेज एंड फिर उन्होंने कहा कि अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो आई विल गो एंड कम बैक व्हेनेवर नेसेसरी। मैंने कहा ठीक है। तो वो 8 डेज रह के वो वापस चले गए और उस दौरान में जो है सारी चीज़ें फिर मेरी फिजिकल कंडीशन एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। बट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, वो जो ब्लीडिंग हुई थी, म्यूकस प्लग भी उस वक्त मेरा थोड़ा सा रिलीज हुआ था। और हाँ, उस टाइम पे एक और चीज़ हुई थी कि आपने जो कहा था वो मैंने सारी होम्योपैथी भी उस वक्त पैनिक के मारे जो है तैयार करके मैंने सब कुछ प्रिपेयर, मेरा 5th फेब से सारा कुछ प्रिपरेशन था लेबर का। बट वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है इसलिए हुई थी कि उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि क्या हो पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या होगा जो पिछले टाइम का एक्सपीरियंस था और वो चीज़ कि अगर मैं पैनिक कर गई, अगर मैं डर गई तो मैं इसी तरह से करूँगी। सो देन आई स्पोक टू यू कि स्नेहा, आई वांट टू एटलीस्ट यू टू स्टे ऑनलाइन विथ मी एंड डोंट अलाउ मी टू गो इनटू पैनिक, जस्ट एक्सप्लेन मी द सिचुएशन, मुझे समझाते रहना एंड मुझे पैनिक नहीं होने देना। यू एग्रीड एंड उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स होते थे, कम्युनिकेशंस होते थे। फिर पैरों पे स्वेट, मैंने वो भी आपको बताया था। देन यू आस्क्ड मी टू स्पीक टू केएल। केएल ने मुझे गाइड किया कि व्हाट्स योर डाइट, उन्होंने डाइट शीट भरने के लिए दिया था कि ईच एंड एवरीथिंग यू आर पुटिंग इनटू योर माउथ, उसमें कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो तुम लिखो उसके अंदर। एंड जस्ट प्रैक्टिसिंग इट 2-3 डेज मेरा अपना कॉन्शियसनेस आ गया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, मेरा वाटर इनटेक और ये सब चीज़ें। तो वो मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने उस हिसाब से जो है। और स्ट्रेस स्ट्रेस जो था वो मेरा पैटर्न है कि स्ट्रेस में जब आती हूँ तो इस तरह से जो है फिजिकल इश्यूज होने लगते हैं। देन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशंस और मेरी जो एनएलपी टेक्निक्स हैं, फिर मैंने जो है वो सब करना शुरू किया। और फिर भी मैं ये नहीं थी कि मैं स्कार थिकनेस करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। आई वेंट टू द डॉक्टर, उन्होंने कहा स्कार थिकनेस करवा के 1-2 दिन में आ जाओ। आई मैं चली गई स्कार थिकनेस भी करवाने के लिए, वो भी करवा लिया एंड दैट वाज 2.7 mm। उनका रिक्वायरमेंट था 3 mm एंड दैट वाज 2.7। तो आई न्यू के व्हाट डॉक्टर इज गोना टेल। देन उसके फिर भी मुझे थोड़ा-सा ये था कि अभी तक अगर डॉक्टर इतनी पॉजिटिव रही है तो मे बी आई वेंट एंड एट दैट टाइम आई वेंट विथ माय फादर टू द डॉक्टर।
तो लाइक दिस डॉक्टर, माय सिस्टर एंड आई, हम दोनों जो है उसी डॉक्टर को विजिट करते थे। और जस्ट लास्ट मंथ इन जनवरी मेरी सिस्टर की बर्थ हुई थी उसी डॉक्टर के पास। एंड द डॉक्टर कंफ्यूज बोथ ऑफ अस, मतलब मुझे, मेरी सिस्टर को, दोनों को उन्होंने मिक्सअप कर दिया। एंड माय सिस्टर वाज हैविंग स्लाइटली, उसका शुगर का वो हायर पे चल रहा था। शी मेंशनड इट टू माय फादर कि इसका तो शुगर भी बहुत हाई चलता है। दैट वाज नॉट मी, माय सिस्टर। और उन्होंने कहा कि आप इसको मतलब समझाओ, ये बहुत सोचती है, बहुत इसको एपिसियोटोमी वगैरह के बारे में मैंने उनसे पहले काफ़ी डिस्कशन किए थे। तो उन्होंने मेरे फादर को भी डराया थोड़ा सा कि पढ़ी लिखी है उसके बावजूद क्यों जिद कर रही है कि मतलब वी बैक करना है, उसको नॉर्मल करना है, ऐसे। सो मैंने तो उस वक्त ज़्यादा उनसे डिस्कशन नहीं किया। हाँ, और उस वक़्त क्या हुआ था कि थोड़ा मैंने उनसे कहा पोज़ीशंस के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में कि पॉसिबल है क्या? मेरी फ्रेंड है डूला, तो दे ऑल डू कि वी बैक पॉसिबल है, इस तरह से। तो इतना वो इरिटेट हुई कि शी सेड टू मी कि इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड, लाइक यू आर सो मच विलिंग, देन गो एंड डू इट एट होम। तुम घर पे कर लो अपना बर्थ। तो मैं उस वक़्त तो आ गई, बहुत ही टेंशन में, स्ट्रेस लेके डॉक्टर के पास से, बहुत रोई-वोई। बट लेटर ऑन, वो आदत है हमारी बुशरा के साथ में, बुशरा नोज़ दिस पैटर्न, कि हम लोग इस तरह से ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, लेकिन जैसे बुशरा ने हमको ट्रेन किया था, हम उसमें से बहुत जल्दी वापस निकलने के भी आदी हो गए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है मैंने फिर अपने आप को पुल बैक किया। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दीज मेडिटेशन बाय ब्रिजेट टेलर, जो आपने भी शेयर किया था। तो उनके फियर रिलीजिंग मेडिटेशंस हैं और बॉडी कॉन्फिडेंस के मेडिटेशंस हैं, वो मैंने करने स्टार्ट किए थे। एंड उससे पहले आपने एक जो है मेट्रोना का, वैपियो मेट्रोना का एक वीडियो शेयर किया था, वो भी मैंने देखा था। और उससे मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ था अबाउट बर्थ। वैपियो ने जैसे बर्थ को जो है मेंशन किया है, जैसे डिस्क्राइब किया है, वो चीज़ मुझे ऐसे लगी कि बहुत, दैट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, that is very close to the pattern and design of creation by the supreme creator। तो वो मुझे लगा कि this is very relatable to a woman, अगर ये चीज़ हम प्रैक्टिस कर सकें। बट हमको जैसे बर्थ को बताया जाता है, जैसे पिक्चराइज किया जाता है कि इट इज सो मच पेनफुल, ऐसे डराया जाता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मतलब ये चीज़ क्यों नहीं हम प्रैक्टिस करते जो वैपियो ने बताई थी। तो वो चीज़ें भी थी माइंड में। देन ब्रिजेट के जो मेडिटेशंस थे, वो भी वही एक पिक्चर क्रिएट करते थे जब भी मैं करती थी। जब ब्रिजेट का जो भी मैं ये करती थी मेडिटेशन, वही पिक्चर क्रिएट होती थी माइंड में कि अ वुमन कैन गिव बर्थ इन वेरी सीरेन एंड काम वे। तो मैं उस वक्त कर रही थी। देन फियर रिलीजिंग मैं कर रही थी, ईएफटी हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, एनएलपी के कुछ टेक्निक्स थे, वो मैं अप्लाई करती थी। और मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रही थी कि, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसे और ऐसे करूँगी। बस मेरे माइंड में एक वो चलता रहता था, एक पिक्चर, एक जिसको हम लोग मेंटल रिहर्सल बोलते हैं। एक बस रिहर्सल चलती रहती थी कि मेरी बर्थ ऐसे होगी, जिस घर में एक्चुअली मेरी बर्थ हुई। तो वहाँ पे मैं अपने आप को जस्ट इमेजिन करती थी, अपने फियर्स को रिलीज़ करती थी, अपने फियर्स को मैं देखती थी कि दिस इज़ माय फियर, दिस इज़ माय फियर। एंड देन मैं अपने सबकॉन्शियस में उन फियर्स को शट डाउन करती थी कि दिस इज़ जस्ट इन माय माइंड, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फियर्स हैं। सो आई यूज्ड टू डू दीस थिंग्स अंटिल द डे केम 26 फेब। ये सब कुछ जो है मैं खुद ही अपने अंदर ही मेरे चल रहा होता था, ये सारी चीज़ें। और बहुत कम उस वक़्त मैंने किसी से भी बातें करना, जो है डिस्कशन करना। इवन मेरे जो मेंटर, मेरी टीचर बुशरा है, शी आल्सो कॉल्ड मी कि राहत व्हाट हैपेंड, आई एम वरीड फॉर यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है। Rahat, तो your मैंने video उनको भी is उस stuck. वक़्त, Is it for everyone? माय साइड इज़ ओके। It's loud and clear. Everything is loud and clear. Like the video is also clear? Yeah, everything is clear. Yeah, continue. शैल आई कंटिन्यू? And Rahat, you also supported your sister for labor and you were feeling contractions, do you remember? When you were supporting her. सॉरी। When you were supporting यस, your यस, sister, हाँ, right? मेरी सिस्टर का,
या मेरी सिस्टर का उसका तुमने जनवरी नॉर्मल में बर्थ बर्थ करवा हुआ दिया था। था? उसका उसको उसी डॉक्टर ने उसको बोला कि यू आर 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, यू जस्ट गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। राहत, we lost you. Yeah. एम ऑडिबल नाउ? Yes. ओके। हाँ, तो जनवरी 23 को मेरी सिस्टर की मतलब उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि शी इज डायलेटेड एंड उसको होम के वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, पैकिंग करते हैं एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको कहा कि नहीं अभी नहीं जाना है, सिंस आई न्यू फ्रॉम योर क्लासेस के स्टेजेस ऑफ लेबर और हाँ कर लिया, स्टेजेस ऑफ लेबर और डायलेशन इस तरह की चीजें। ट्रांजिशन जो था ना वो मेरे माइंड में वापियों की वजह से वो चीज का बहुत अच्छे से बैठा हुआ था कि क्या होगा, देन वी शुड नो कि हाँ को रुकाया। देन हमारा उस दिन कुरान का पेपर था, मैंने उसको पेपर भी सॉल्व करवाया कि यू सिट एंड राइट दिस पेपर जस्ट फॉर योर डिस्ट्रैक्शन, पेपर भी कर लो। तो वो पेन में थी और मैंने उसे पेपर सॉल्व करवाया। देन मैंने उसको रात में 12 बजे तक रुकाया, फिर मुझे ऐसा लगा मैंने उसको कॉम्प्रेशन वगैरह भी देनी। देन आई सॉ शी वाज स्वेइंग लाइक ऐसे ऐसे वो मूव कर रही थी एंड शी वाज डोजिंग, मतलब उसका वो नहीं चल रहा था पता कि क्या कर रही है, इस तरह से थोड़ा हेवे होने लगी वो। इट वाज रात में 2 बज गए थे। देन आई सेड माय फैमिली कि अब इसको लेके जाते हैं। सो वी कॉल्ड हर हस्बैंड एंड एवरीथिंग एंड शी वेंट एंड बाय 2:45 शी गेव बर्थ। सो द डॉक्टर वाज लाइक, वो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि वो लेबर रूम में भी, अब उसको 2 बजे रात में डॉक्टर को आना पड़ा, 2 ढाई बजे। तो वो थोड़ी सी इरिटेटेड थी लेकिन उन्होंने मैनेज किया उसको, बिकॉज एकदम मैंने उसको अपनी सिस्टर को बिल्कुल एंड मोमेंट पे किया और उसका बर्थ हो गया। बट देयर ऑल्सो शी मिक्सड टू ऑफ अस, मुझे और मेरी सिस्टर को जो है मिक्स किया उन्होंने कि ये बहुत केमिस्ट्री की टीचर है और इसको बहुत आता है, बहुत पढ़ी लिखी है, सब मालूम है इसको, और जिद्दी भी बहुत है। इस तरह से वो लेबर रूम में बोल रही थी। दैट वाज अबाउट मी, लेकिन मैं नहीं थी वहां पे, मेरी सिस्टर थी। So I wonder how did she not do a C-section for you? अगर तुम वही थी उनके लिए। पता नहीं। सो दिस हैपेंड इन जनवरी, फिर उसके बाद ये मेरा स्टार्ट हुआ। देन फिर वो ये सब चीजें हो रही थी, एनएलपी एंड एवरीथिंग, और मैं काफी उसके बाद में थोड़ा सेटल हो गई थी। मैंने वहाँ सिविल हॉस्पिटल में पता किया था, तो मैंने ये देखा कि दे एडमिट मी, अगर मैं पेन में चली जाती हूँ, लेबर पेन में, तो दे टेक मी इन एंड वहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा प्लान, मैंने ऐसी प्लान आउट किया, घर में भी बोला यही कि हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाएंगे जब कोई हॉस्पिटल हमको डिनाई नहीं कर पाएगा कि अभी वी बैक करना है, सॉरी सी सेक्शन करना है, इस तरह से। तो फिर 26 फेब को जो है मॉर्निंग के टाइम पे फजर में आई फेल्ट अ वेरी स्लाइट लाइक वेव ऑफ पेन इन माई बैक, और वो बहुत इतना माइनर था कि मुझे बहुत ऐसे आंखें बंद करके बहुत फोकस करके उसको ध्यान लगा के मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ देयर इज समथिंग हैपनिंग इनटू माय बॉडी। एंड उसके बाद मैंने वो थोड़ा नोट डाउन किया और फिर वो मैंने आपको शेयर किया था कि स्नेहा ऐसे ऐसे हो रहा है। बट दैट डे वेंट 26 फरवरी, दैट डे माई हस्बैंड केम फ्रॉम मुंबई, और हम लोग अपने अलग स्पेस में चले गए थे। उस दिन रात में वो पेन थोड़ा सा इंटेंस हुआ, फिर भी कोई ऐसे रिदम नहीं था उसका, कोई वो नहीं था कि होगा ही, कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। तो वो रात चली गई, किसी तरह से मैंने सोते जागते रात निकाली। और फिर मैंने सुबह में हस्बैंड को बोला कि रात में, मैंने उनको रात भर नहीं कुछ बोला, सुबह में मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे रात में हो रहा था, तो नाउ आई नीड टू रेस्ट। मैंने 27 को सुबह में, सुबह से आई थिंक पूरा ही दिन मैं बिस्तर पर ही थी, रेस्ट कर रही थी। जैसे पेन आता था तो मैं कभी आगे झुक जा रही थी, ऑल फोर्स पे कुशन लगा के उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, जैसे बर्थ बॉल पे अप एंड डाउन होते हैं, वैसे कुछ करने की कोशिश कर रही थी।
तो पूरा दिन चला गया और काफ़ी गर्मी थी और बहुत मैं एग्जॉस्टेड हो रही थी शाम तक। अ, तो शाम में फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। शी सेड के ऐसे मतलब होता है कभी-कभी टाइम लगता है एंड ऑल दैट। शी सेड मी कि थोड़ा-सा बाहर निकलो खुली हवा में। तो मैंने वैसे ही किया, फिर मैं वॉक पे गई। 27th को शाम में जो है हस्बैंड और मैं वॉक पर गए। थोड़ा हम लोगों ने उस टाइम पे भी मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे स्ट्रॉन्ग, बट उसका फिर भी कोई पैटर्न नहीं था। तो मैं वॉक पर गई, हम लोगों ने वॉक किया, डेट्स वगैरह परचेज़ किया और जैसे-जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता था मैं रुक जाती थी रास्ते में। हस्बैंड का हाथ पकड़ के वी स्टॉप, फिर हम लोग चलते थे, फिर रुकते थे। इस तरह से करते-करते मैंने अराउंड 30 25-30 मिनट मैंने वॉक की। देन वी केम बैक होम, तो मुझे थोड़ा-सा रिफ्रेश लगा क्योंकि शाम थी तो थोड़ी ठंडी हवा वगैरह चल रही थी और वॉक करने से, बाहर जाके आने से और उस एनवायरनमेंट में से निकलने से थोड़ा-सा मुझे अच्छा फ़ील हुआ। देन 27th को रात में मेरे फादर आए मेरे पास। ही सॉ माय कंडीशन। मेरी सिस्टर भी मुझसे बात कर रही थी जिसकी बर्थ हुई थी। तो वो बात करने से भी वो बोल रही थी कि यू आर हैविंग पेन, स्ट्रॉन्ग पेन। बट आई सेड नहीं कि मैं मैनेज कर पा रही हूँ, मुझे उसके बीच में नींद भी आ जा रही है, इतना अभी नहीं कुछ हुआ है, टाइम है अभी, वी कैन मतलब अभी वेट कर सकते हैं हम लोग। मेरे फादर भी आए तो उन्होंने भी पूछा कि अभी जाना है क्या हॉस्पिटल? मैंने बोला नहीं अभी नहीं जाना है, मैं स्नेहा से कांटेक्ट में हूँ और स्नेहा को मैं सब बता रही हूँ अपनी कंडीशंस कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो व्हेन स्नेहा विल टेल कि राहत नाउ यू कैन गो, तब मैं चली जाऊँगी। एंड दैट डे ओनली शाम को मैंने स्नेहा से भी बात की। तो स्नेहा आस्क्ड मी कि यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल और नॉट? एंड spontaneously a no came out of my mouth। No, it और did एक not come out from your mouth. You just nod your head. हाँ, मैंने कुछ शायद Smile कुछ means I was बोला भी नहीं waiting. था एंड आई जस्ट स्माइल्ड ऑन माय ओन एक्सप्रेशन कि क्या Yes. निकला है ये मेरे मुंह से, मतलब मेरे अंदर से जो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस से निकला था। मैंने पर्पसली नहीं, क्योंकि पर्पसली मेरा प्लान कुछ और था, वो Hmm. सबकॉन्शियस से निकला था। Okay. क्योंकि अंदर वही सब चल रहा था, अंदर वो ही चीज की प्रिपरेशन चल रही थी। ऑल्दो मैं कॉन्शियसली कुछ और करना चाह रही थी, कुछ और बोल रही थी, लेकिन अंदर जो था वो जो विजुअलाइजेशन और जो पिक्चर मेरे माइंड में चल रही थी वो कुछ और चीज की थी। While तो your parents were seeing your struggle, they were seeing कि हमारी बेटी बहुत मेहनत कर रही है. You know, she's been talking to doctors, she's been going to the hospitals, and they understood that she is needing something which is so natural, but no one is providing. तो आपके फादर ने ये भी बोला था कि स्नेहा को बुला लेते हैं, but it was यस यस, Ramadan going to happen and घर पे सब कुछ था, तो like I cannot travel at this moment. Like इवन ठीक है ही चलो let's सेड के see. आई टेक यू टू मुंबई टू अच्छा स्नेहा, मगर स्नेहा नहीं आ सकती है तो अच्छा ये आई भी हुआ टेक यू था. देयर। हाँ, बट माय मदर सेड कि इन दिस स्टेट 9th मंथ चल रहा है उसका, वेयर यू विल टेक हर, मतलब अभी कहाँ लेके जाएंगे उसको? तो वो कुछ हो नहीं पा रहा था कि तुम्हारा आना या मेरा जाना, वो चीजें जी. कुछ सेटल डाउन नहीं हो पा रही थी। सो आई सेड के जो भी है अल्लाह के हाथ में है। एंड इन द फाइनल डेज आई जस्ट, मैं जब भी मेडिटेशन करती थी तो मैं एक चीज आती थी दिल में, हजरत मरियम का ख्याल आता था। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ने उनको कैसे ताकत दी थी, कैसे वो चीज उनके लिए पॉसिबल करी थी। और ऐसी एक दिन दुआ करते करते मेरे मुंह से सडनली ये निकला कि अल्लाह वो चीज दे जो तूने मरियम को दी थी। तो मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी उस दुआ के ऊपर कि ये कैसे मैंने मांगा। एंड सही बात है। फिर उसके बाद जो है 27th को रात में वो रिदम डेवलप होने लगा इसका, कॉन्ट्रैक्शंस का। एंड व्हाइल इट हैपेंड, जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी जब मैं फियर रिलीजिंग करती थी, तो जो अटमोस्ट फियर मेरे जहन में आता था वो ये था कि अगर स्कार रप्चर होता है, जैसे ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर्स और सब लोग कह रहे हैं कि स्कार रप्चर होता है, तो व्हाट मैक्स टू मैक्स क्या होगा? तो आई न्यू कि इट इज डेथ। देन आई थिंक कि मैं डेथ से क्यों डर रही हूँ, मेरी डेथ तो डेफिनेट है, वो तो होने ही वाली है। अगर मैं सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल के बेड पे भी लेटती हूँ वहां पर भी मेरी डेथ हो सकती है। व्हेन दे आर कटिंग माय स्टमक, उस टाइम पे भी मेरी डेथ हो सकती है। और मेरा स्कार रप्चर हो तो कहीं पर भी मेरी डेथ हो सकती है। इफ माय डेथ हैपेंस, मतलब मेरा बेबी, समझो बेबी को कुछ हुआ तो मैं एक बेबी लूज करूंगी। बट अगर मेरी डेथ होती है तो मैं अपने दोनों बच्चों को और अपने आप को, तीनों को लूज कर दूंगी। मतलब आई विल नॉट बी एबल टू सी माय बोथ माय किड्स एंड
I'll not be in this world. Then what? I said कि ये तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो मेरी डेथ लिखी हुई है. अगर मैं इस कंडीशन में, आई बिलीव कि ये जो चीज है, लेबर और गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, टू अ लाइफ, टू अ सोल, नर्चरिंग अ सोल विद इन मी, अल्लाह ताला ने जो सोल मेरे अंदर डाली है उसको मैं नर्चर कर रही थी. उसको मैंने अपने अंदर 9 मंथ्स तक जब रखा था, उसको जो बर्थ देना था मुझे, वो तो प्रोसेस मेरे क्रिएटर का डिजाइन किया हुआ है. सो दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ माय फेथ कि ये चीज अल्लाह ने अगर मेरे ऊपर डाली है, मुझे माँ बनाया है, तो इस चीज से नेचुरली निकालना ये भी उसी का डिजाइन है. वो मुझे कैसे गुजारेगा इस प्रोसेस से, और इसमें मेरी जान जाएगी नहीं जाएगी ये मुझे नहीं पता है. और अल्लाह ताला के डिजाइन के आगे सरेंडर मैं करती हूँ, तभी भी मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी ये भी नहीं पता है. उस टाइम पे वो एक यूट्यूब पर एक है उनके, उस पे मैंने वो स्टेटस जो आपने लगाया है मेरी स्टोरी पे, वो मैंने देखा कि फेथ एंड फियर बोथ डिमांड यू टू बिलीव इन समथिंग अनसीन. ऐसी कोई चीज जिसको आपने नहीं देखा है. फेथ में भी आप किसी ऐसी चीज पर बिलीव करते हैं जो आपने नहीं देखी है, और फियर में भी आपको किसी ऐसी चीज पर ही बिलीव करना होता है जो आपने नहीं देखी है. बट यू हैव टू चूज कि आप फेथ से बिलीव करते हैं या फियर से बिलीव करते हैं. So in those moments, I always reminded myself कि I'll choose by faith. I'll choose by faith. मैं ईमान के साथ में जो है इस चीज को मतलब लेके चलूंगी. और वो एक आयत कुरान की जो है वो बार बार आती थी जहन में कि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि हम तुमको आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जानो माल के, फलों के नुकसान से. तो मैं सोचती थी कि फियर को, और मतलब ये जो आजमाइशें हैं, इसको कौन सी चीज जो है इसके अगेंस्ट में हमारे साथ, हमारे अंदर मतलब होनी चाहिए जो हम इन चीजों से गुजर जाए, इस आजमाइश से. सो द आंसर वाज एवरी टाइम फेथ, ईमान. सो आई न्यू दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ ईमान फॉर मी. इट वाज द टेस्ट ऑफ फेथ. एंड आई रिमाइंडेड ऑलवेज माई सेल्फ कि भले से चली जाए जान, लेकिन इस प्रोसेस में जाएगी तो शायद मेरी जान का जाना भी मेरे रब के पास काबिल कबूल होगा. ही विल एक्सेप्ट मी. लेकिन अगर मैं फियर के आगे सरेंडर करके अगर मेरी जान चली जाती है, तो शायद मेरे लिए भी अपने रब के सामने खड़े रहने में शायद मुझे शर्मिंदगी होगी. तो आई चोज फेथ एवरी टाइम. एंड व्हेन द टाइम केम, 27 Feb रात में But कॉन्ट्रैक्शंस I आए. would just add here कि while आपको सब हॉस्पिटल से ना आ रहा था एंड यू चोज के सिविल हॉस्पिटल चले जाएंगे, एंड देन यू स्टिल वांटेड टू नो कि भाई इमरजेंसी क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि यस. तपस्या से एक बार बात कर लो. और यस. देन यू शेयर के जब तुमने उनसे बात करी 45 मिनट से 50 मिनट, एंड और आपका वो अगेन फेथ बढ़ता गया कि मेरा कमिटमेंट टू स्टे बैक एट होम एंड लेबर इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू द हॉस्पिटल, यस. है ना. तो एंड तपस्या ने आपको तपस्या ने, इमरजेंसी के बारे में बात किया था कि व्हाट इमरजेंसीज नहीं, कैन कॉज, के बस इन जनरल यू हैड. तपस्या डिडंट स्पोक टू मी अबाउट इमरजेंसी सिचुएशंस. तपस्या ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती. But she emphasized me to stay grounded. एंड कुछ उनके मुंह से भी ऐसा सेंटेंस निकला था दैट मतलब उसने भी मुझे डायरेक्ट किया कि चूज योर फेथ. शी आस्क्ड क्वेश्चन मी, आई थिंक शी क्वेश्चन मी के यू आर अ फेथफुल वुमन, यू तुम्हारा तो ईमान है इस चीज के ऊपर, ऐसे कुछ उन्होंने मतलब यूज किया था. तो मुझे तपस्या के कॉन्वर्जेशन में और मेरी डॉक्टर के कॉन्वर्जेशन में वो चीज नजर आई कि हाउ टू वुमेन आर डायरेक्टिंग मी टुवर्ड्स डिफरेंट पाथ्स. वन इज डायरेक्टिंग मी टू अ फियर एंड वन इज डायरेक्टिंग मी टुवर्ड्स फेथ. सो वो तपस्या से कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो भी मैंने अपने मतलब फैमिली के लिए कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है जिसमें मैं अगर घर पे लेबर करूँ भी तो कब मेरे लिए जाना जरूरी हो जाएगा. तो इस तरह से जो है मैंने तपस्या से भी बात की. एंड वो कॉन्वर्जेशन भी बहुत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, मतलब इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा सॉलिडिफाई होने के लिए कि नहीं, मैं घर पर लेबर करूंगी फाइनल मोमेंट्स तक, लास्ट स्टेज ऑफ लेबर तक मैं जो है घर पर ही रहूंगी. सो जो मेरा फाइनल स्टेज ऑफ लेबर था वो 27 Feb को रात में आया. एंड उस दिन उस रात में जो है मैंने आई थिंक 3 3 बजे के अतराफ में कुछ आपको कॉल किया था रात में
क्योंकि उसके बाद का जो है, मुझे आपको कॉल करने के बाद के टाइम फ्रेम का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अंटिल द बर्थ। बर्थ भी बेबी हाथ में आने के बाद मैंने घड़ी देखी थी कि व्हाट्स द टाइम। सो वो उतना टाइम ड्यूरेशन मुझे, जब मैंने बाद में कॉल लॉग देखा तो पता चला कि मेरा आपसे कॉल जो है वो एटलीस्ट 40-45 मिनट्स या 50 मिनट कुछ कॉल थी वो, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बात की थी उस वक्त। सो यू सॉ मी, माई कंडीशन, व्हाट वाज आई डूइंग, मुझे उस वक्त Yeah, so वॉमिटिंग। I would definitely. यस So यस। I came to my space and I was sitting and I was looking at you. And I don't remember you were wearing something के name, but तुम थी, आपके हस्बैंड यहाँ वहाँ घूम रहे थे, कुछ तुम मैनेज कर रहे थे, या एंड यू वर सेल्फ मैनेजिंग योरसेल्फ, मतलब ऐसा कुछ भी आप किसी से मांग नहीं रही थी, कुछ नहीं, आप खुद ही अपने आप को या दूसरों को भी डायरेक्शन दे रही थी वो टाइम पर। ऐसे लाइक कि हाँ मैं आई वाज इट आस्किंग वाज कि मी एंड माय हस्बैंड ओनली। या बट दिस बॉय ऐसा वाज, नहीं कि मतलब जो प्रेशर दो, मुझे दबाओ, मुझे पकड़ो, ये कुछ नहीं, आप खुद से बैठी हुई थी, आप बात कर रही थी मुझसे कि ऐसा हो रहा है स्नेहा, वैसा हो रहा है, पेनफुल है आई वाज ऑन माय बट ऑल फोर्स। मैनेजेबल है। या ऑल फोर्स पे थी मैं जब मैं बात कर रही थी आपसे। जी जी, वैसा ही बात कर रहे थे, एंड बैठ के भी बात कर रहे थे, एंड वी जस्ट टॉकिंग, कुछ ऐसा नहीं कि, एंड वो बात करते करते आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, लाइक गुड, इट इज गोइंग गुड, हम सुबह तक देखते हैं, ऐसे बस हमने वही किया। एंड फिर जो मैं सुबह आई 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 गॉट अप फॉर प्रेयर, तभी आपका कॉल आ गया, स्नेहा द बेबी इज हियर, लाइक ओके, एंड द हस्बैंड इज, मतलब वो तो थे भी नहीं, हस्बैंड भी थे नहीं, वो ये बच्चे ने बुला लिया था उनको। सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मोमेंट ऑफ योर्स, लाइक बस ये आ गया मेरे हाथ में, दैट वाज मिरेकलस, आई वाज सो बट आई अमेज्ड। ट्रैवल्ड अ जर्नी या in between your call and the next call. दैट वाज अ ट्रांजिशन। हाँ, वो एक ऐसे मोमेंट्स थे। यस। जागे थे तो अच्छा। सो वो एक जो प्रोसेस था वो आपके कॉल के टाइम, मतलब वो जो ट्रांजिशन का जो फेज था, दैट वाज, नाउ आई फील उस टाइम पे तो मुझे नहीं एहसास था, बट नाउ आई फील दैट वाज समथिंग वेरी, like I don't know what the women feel in this room when I say those words, that I enjoyed those moments. वाह I just now whenever I look back to that time, uh, जो औरतें डिस्क्राइब करती हैं इतना पेन, मैंने उस पेन को जो उस वक्त फील किया था, इट वाज नॉट पेन, आई जस्ट फेल्ट लाइक something, some summoning or some divine like signals are being given to my body to open up. एंड मैंने उस चीज को पहले भी अपने जहन में ऐसे ही जो है वो किया हुआ था, पिक्चराइज के अल्लाह ताला सेज द women आर योर लाइक तुम्हारी फर्टाइल सॉइल्स हैं। सो आई नो कि व्हेनेवर एक सॉइल में जब बीज डाला जाता है तो उसको ओपन करके जो है उसके अंदर बीज डाला जाता है, व्हेनेवर उसमें से खेती बाहर आनी होती है तो फिर वो सॉइल ओपन होती है और खेती बाहर आती है। सो इफ आई एम दैट फर्टाइल सॉइल एज mentioned by my Rab, so my body will open up on its own by his command. It will open up. So I had that faith that it will open. And I always kept talking to my baby and my body. And एक बार ऐसा हुआ था कि I was just in meditation. I asked a question to myself and my baby कि will we be able to do this? And the answer was an instant yes that came from within me. And वो एक yes का आंसर जो अंदर से आया था ना, that kept me going कि it will happen, it will happen. और वो ट्रांजिशन के फेस में मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता था लाइक पेरिनियम को मैं जैसे स्वेइंग कर रही थी तो नीचे जो मैट्रेस था तो आई वाज रबिंग माय पेरिनियम ऑन दैट, एंड वंस आई फेल्ट रिंग ऑफ फायर, जो आई थिंक देयर वाज वन सिस्टर मेरे से प्रायर उनकी बर्थ हुई थी, शी हाँ मेंशन्ड दैट रिंग ऑफ फायर, नॉट फातिमा, इट वाज आई थिंक स्नेहा ओनली, स्नेहा राय। हाँ 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 हाँ। यस, उनकी स्टोरी में फातिमा की स्टोरी ने भी काफी मुझे इंस्पायर किया था। लाइक फातिमा वाज, मतलब वो स्कूटी पे जा रही थी अपनी, जब उनको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे और इस तरह से, तो ये स्टोरीज ने मुझे काफी हेल्प करी थी उस फेज से जो है नेविगेट करने के लिए। तो वो चीज जहन में घूम रही थी कि स्नेहा राय ने जो मेंशन किया था रिंग ऑफ फायर शी फेल्ट, सो आई आल्सो फेल्ट इट वंस
फर्स्ट मैंने उसको महसूस किया, उसके बाद में मुझे पुशिंग अर्ज आने लगे। दैट पुशिंग अर्ज वाज नेचुरल, मैं खुद से नहीं कर रही थी। जैसे आता था, आई वुड होल्ड माय हस्बैंड्स हैंड एंड आई वुड सिट डाउन। ही इज लिटिल बिट टॉलर, माशाल्लाह 6 फीट, तो मैं उनके हाथ बहुत मजबूती से पकड़ के मैं नीचे बैठ जाती थी। एंड वो मुझे पूछ रहे थे कि घर पे कॉल करना है क्या, घर वालों को बुलाना है, हॉस्पिटल जाना है। और मैं उनको कुछ आंसर नहीं कर पा रही थी कि क्या करना है। मैं अपने ही उसमें थी, जो मुझे करने का मन कर रहा था मैं उस वक्त वो कर रही थी। मैं पूरी तरह से जो है मैंने बॉडी सरेंडर कर दी थी कि जो है, जो हो रहा है दैट इज राइट। सो इतने में ये जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, उसने पहले एक बार ही पुकारा, तो माय हस्बैंड वेंट के सो रहा है, उसको सुला के ही केम बैक। देन हम लोग लाइट्स ऑफ कर दी थी हम लोगों ने, एंड आई वाज वॉकिंग इन द कॉरिडोर। एक स्पेस था वहाँ पे, वो मैं वॉक कर रही थी वहाँ पे। एंड फिर पुशिंग और जाने लगा, मुझे 2 से 3 बार आया। एंड देन माय सन अगेन कॉल्ड, ही सेइंग नाउ कि आई वाज नॉट स्लीपिंग, आई वाज अवेक। सो in his narration he was awake and he knew something is happening in the house. So he called my husband, us मेरे हस्बैंड गए अंदर, उसको देखा थोड़ा सा। और उस टाइम पे लाइक मैं वो लंच पोजीशन में नीचे बैठ गई थी। एक्चुअली लंच में बैठी भी नहीं थी, नीचे बैठ गई थी। आई वॉज वेयरिंग लाइक अ लॉन्ग गाउन टाइप जो है मैंने बनाया हुआ था अपने लिए, नीचे कुछ नहीं, वो बस लॉन्ग एक गाउन मैंने पहना हुआ था। सो मैं बैठ गई नीचे, दोनों घुटने जमीन पे रख के, एंड आई पुट माई फिस्ट लाइक दिस ऑन द ग्राउंड। एंड देन आई, एक लेग जो है मैंने उठा लिया, क्योंकि ये पोजीशन भी मैंने बहुत अपने माइंड में मैंने इसको बहुत रिहर्स किया हुआ था, ये पोजीशन को। आई फेल्ट स्ट्रांग इन दैट पोजीशन फॉर पुशिंग। सो वो पोजीशन में जब मैंने एक बारी मुझे पुशिंग और जाया, तो वो रिंग ऑफ फायर काफी स्ट्रांग फील हुआ था उस टाइम पे। तो जब वो रिंग ऑफ फायर फील हुआ, देन आई रिमेम्बर्ड अबाउट द एड्रेनालिन, कि नाउ आई नीड द एड्रेनालिन, कि नाउ और नेवर, डू और डाई वाली सिचुएशन अब होनी है। सो आई फेल्ट के हो गया है, नाउ आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट्स एंड इट विल हैपन इंशाल्लाह। सो और उस टाइम पे हाँ, हॉर्स स्लिप वाली जो ब्रीदिंग टेक्निक्स थी वो मैं कर रही थी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में अचानक से जो है मुझे ब्रिजेट की बात याद आई, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में, कि व्हेन द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज हैपनिंग यू हैव टू लाइक रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। तो मैंने लास्ट मोमेंट में जो है एक बहुत ही डीप ब्रेथ लिया, और पूरी बॉडी को जो है कंप्लीटली मैंने वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पूरी बॉडी को मैंने रिलैक्स कर दिया, बिकॉज दैट वाज एन हैबिट। तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो आई वॉज एबल टू डू, क्योंकि वो हमारी डीप ब्रीदिंग वाली हैबिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेंटर बुशरा ने बहुत अच्छे से दिमाग में डाली हुई है, कि जैसे ही बोला जाता है टेक अ डीप ब्रेथ इन, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाती है बॉडी रिलैक्स। सो आई डिड दैट एंड आई फेल्ट लाइक सेइंग समथिंग, कुछ लाइक मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, वो जस्ट वोकलाइजिंग जो करनी होती है, ग्रोनिंग और इस तरह से साउंड, मैं वही कर रही थी। एंड नो स्क्रीमिंग, नो एनी कुछ बोलना या कुछ कहना, कुछ भी नहीं। बट इन दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक समथिंग सेइंग समथिंग, तो आई वाज लाइक कुछ दुआ याद आ जाए या कुछ मैं कह दूं। बट जो चीज़ निकली वो था बिस्मिल्लाह ओनली, एंड विद द बिस्मिल्लाह आई पुश्ड। एंड आई रिमेम्बर माय मदर एट दैट टाइम, कि वो एक चीज़ थी, एक पर्सन थी जो मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त आई नीडेड हर द मोस्ट। So I just called her name, and just the baby came out. So he fell between my legs. I was not ready to catch him, but as soon as he came out, I just picked him and called my husband. So उन्होंने पहले ही शायद उन दोनों ने आवाज़ सुन ली थी अंदर बेबी की, and they came out. मेरे husband ने आके लाइट ऑन करी, and they saw कि okay, baby is here. Then I called, मैंने उनसे कहा कि go and bring the phone, स्नेहा को कॉल लगाओ। So the placenta was, the umbilical cord was intact, still attached. I kept it right that way, in that way, and then I knew what to do. I went to the washroom, huh? And my son was there. He was frightened to see the blood and everything. तो उन्होंने उसको एक चेयर पे बिठा के रखा था। He picked टॉवल लाके बेबी को पिक किया। Then I knew कि मुझे वॉशरूम में जाके टॉयलेट सीट पे बैठना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि प्लासेंटा वैसे बाहर आएगा।
एंड माई हस्बैंड्स टच, डेफिनेटली उस चीज से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये सारी केमिस्ट्री भी दिमाग में बिठाई हुई थी पहले से ही, सारा किस स्टेप पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन सा हार्मोन, लाइक वो जो पूपिंग एंड एवरीथिंग होती है, वो सारी चीजें, मतलब वो इतना दिमाग में मैंने अपने आप को सिखाया था, वो सारी चीजों का रिवीजन किया था कि हर मोमेंट पे कभी ब्रिजेट याद आती थी, कभी स्नेहा राय याद आती थी, कभी फातिमा याद आती थी। और स्नेहा का कुछ नहीं, अभी तुम्हारा जो हमेशा वाओ। कॉल, कुछ नहीं, इट्स टाइम, कुछ नहीं, ठीक है, ओके रेस्ट करो। तो वो अपने आप को वैसे ही रिपीट करती थी, ओके रेस्ट करो, कुछ नहीं हो रहा है। So then the placenta also came out in 15-20 minutes. You were like, हाँ, मेरा बेटा भी जागा बैठा था, तो हमने उसको एक फोन पे कुछ लगा के दे दिया, so that we can clean up everything. और मेरे हस्बैंड और मैं जस्ट बातें कर रहे थे बहुत कंफर्टेबली, ऐसा लग नहीं रहा था कि 10 मिनट पहले कुछ हुआ है। एंड हम लोग दोनों बेबी को लेके बातें भी कर रहे हैं, क्लीनिंग किया, उन्होंने मुझे सेटल किया सारा कुछ, फिर बाद में सेटल डाउन किया। एंड देन 2 घंटे के बाद में हमने घर पे कॉल लगाया मेरे फादर को कि ही सेड, मैं बेटे के पास दिया कि बोलो भाई आ गया है। सो दिस वाज इट। अल्हम्दुलिल्लाह। This reflection ना। सो ये स्टोरी में तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरीज, जैसे तपस्या बोलती है, तपस्या की टीचर बोलती है, स्टोरीज आर मेडिसिन, मतलब यही चीज है जो हमको लेके चलती है आगे तक। अल्हम्दुलिल्लाह। यू बारकल्लाह। आस्क्ड मी अगेन एंड अगेन कि व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू नरेट दिस स्टोरी, मतलब कुछ बताओ। ना वो फेथ और फियर से आगे कोई चीज नहीं आ रही थी, क्योंकि यही दो चीजें थी जो मेरे माइंड में चलती थी। आई न्यू के दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेथ एंड आई हैव टू कॉन्कर फियर। So yeah, anyone would like to ask anything, और कुछ किसी को कुछ कहना है? There is one input I want to add, Sneha, all these things, what I did, VBAC, like you say, VBAC takes time, it's difficult. But I feel there is, मतलब इसमें faith and your internal work is very important. कि अगर हम वो, क्योंकि मैंने देखा है वीबैक करने वाली मदर्स के माइंड में भी लास्ट मोमेंट तक वो चीजें चलती रहती है, लाइक मेरे साथ में हुआ। बट जितना जल्दी हम वो फियर्स कॉन्कर कर लेंगे, उतना हमारे लिए जो है ना, ये चीजें इजी हो जाएंगी बाद वाली। फॉर मी द फेवर्स फैक्टरिंग, जो जो फैक्टर्स ने फेवर किया कि मैं बिल्कुल सेक्लूडेड थी, फैमिली नहीं थी साथ में, मेरे हस्बैंड ही थे, एंड ही इज लाइक, वो जो मैं बोलती हूँ वो सुनना ही पड़ता है उनको, इस तरह से। एंड आफ्टरवर्ड ही गेव अ कमेंट कि मुझे पता था तुमको कुछ करना ही है, इस तरह से। Yeah, because he also attended the sessions, तो मेरे Yes, सेशंस में मैं यही बोलती थी, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। So either you yes, choose to birth in the hospital, but if nothing happens, you're birthing at home. These are your tools, and you birth at your home. Wow. तो faith का लेवल आपका इस स्टोरी में लेसन था हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। yes, and So, it increased to another level afterwards. It went to another level. wait, let me see if there's any chat. I have 4 babies at the age of 31. Now I want one more, like pure home delivery. Inshallah. VBAC can be done after how many C-sections? After many C-sections. When the placenta came out after 15-20 minutes. Usually Hi. placentas come out like in an hour or so. But we have also attended birth where the placenta came out after 3 hours, 6 hours. Tapasya had one mother whose placenta came out of 36 hours. 36 Tapasya के 24, कुछ तो ऐसा था number, 36. 36. Yes, Tapasya, would you like to say something to Rahat? I wish Kale was here. All of my teachers were with Rahat. Like Rahat had everyone.
वापियों से लेके केएल से लेके एवरीवन इन दिस जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह. Even my teachers, Yeah, she's your there teacher today as also. well. My teacher, my mentor, Aisha was also there. Whenever I needed, I had a call with her. एंड आयशा की भी जो टू द पॉइंट, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि आयशा ने फियर के ऊपर बहुत डायरेक्ट किया था मुझे कि राहत वर्क ऑन योर फियर्स फर्स्ट. Hmm. Hmm. Yeah. इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि व्हाट शी वाज थिंकिंग अबाउट द स्कार रप्चर एंड हर पर्सपेक्टिव ऑन डेथ. बिकॉज Yeah. जब होम बर्थ के बारे में लोग सोचते हैं, आई ऑफन आस्क देम कि व्हाट आर योर वर्स्ट फियर्स, यू हैव टू वर्क ऑन देम. क्योंकि एक बार उनका आंसर आपको मिल गया, देन होम बर्थ इज नथिंग. Yeah. बर्थ जस्ट हैपेंस. It's the fears that hold us back. And what she said कि अगर डेथ आनी है तो वो स्कार रप्चर होके भी आएगी और सी सेक्शन के टेबल पे भी आएगी. So death is inevitable. So birth and death, they are two extremes of the same continuum, and we are just walking the path. तो that level of confidence, faith तभी आता है जब आप काफी inner work करते हो. And that is what is needed for VBAC mothers. Yeah. आपका स्कार थिकनेस कितना है, आपके 2 बर्थ्स में क्या गैप है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपका व्हाटएवर द पैरामीटर्स, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. या कितने सिजेरियंस के बाद वीबैक हो सकता है, एक लिमिट के बाद वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है. What is important is, are you able to do that inner work and take that leap of faith कि I have to have a perspective on life and death itself. I work with my spirituality और मेरे रब का क्या रिलेशनशिप है. ये कोर तक हम जब तक नहीं जाते हैं, एनी बर्थ, इट माइट बी VBAC, एनी बर्थ, तब तक वो कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाएंगे. एंड मतलब राहत इज so fortunate that she also got the support. मतलब हस्बैंड ने शायद बोला नहीं होगा explicitly, but he knew कि this is what she wants and I just have to be there for her. So these are just things that really blew my mind, like wow. Yeah. केमिस्ट्री टीचर अब पूरा केमिस्ट्री लेके चल रही थी अपने घर में, ये आएगा ऑक्सीटोसिन के लिए हस्बैंड का हाथ है, मैं टॉयलेट सीट पे चली जाऊंगी. नहीं, इतना अच्छे से अगर किसी ने मेरे क्लासेस का रिवीजन किया है तो वो राहत ही है. वही बोल रही हूँ ना कि इनर वर्क, इनर जर्नी बहुत करी है हम लोग. बहुत बार हम लोग एक्सटर्नली आंसर्स ढूंढने में ज्यादा टाइम गवाते हैं, बट जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है उसको आप कैसे इंटरनलाइज कर रहे हो, दैट्स व्हाट इज वेरी रिमार्केबल इन हर जर्नी. I see her, she aspires to educate women, and हमारा चल रहा है कि कैसे मैं इसको बताऊं लोगों को, स्नेहा. एंड दिस, ये ऐसी औरतों को ही ये काम आता है, ये ऐसी औरतें ही ये काम कर पाती है, बिकॉज इट नीड्स, हमको तोड़ देता है. लाइक तपस्या, हम जो भी बर्थ वर्कर्स हैं, हम टूटते हैं फिर हम वापस आते हैं. इट्स ओनली द फेथ, इट्स ओनली द वर्क विच गेट्स अस बैक. एंड सो या, लुकिंग फॉरवर्ड के राहत थोड़ा आ जाए इसी भी एजुकेशन में और सपोर्ट में थोड़ा इंशाल्लाह. पोस्टमार्टम खत्म हो जाए तो फिर हमारे Yeah. सेशंस ज्वाइन कर लें, हमारे I'm actually मिडवाइफरी. joining your sessions and with Okay. मेरी टीचर जो बुशरा है उनसे मेरी लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग जस्ट मतलब मेरे प्रेगनेंसी में ही कंप्लीट हुई थी. तो मैं बुशरा से डिस्कस कर रही थी, बुशरा आई एम नॉट एबल टू डिसाइड ऑन माय नीश कि मैं किस चीज में लाइफ कोचिंग करूं. एंड अच्छा. दिस थिंग हैपेंड. सो मैंने फिर अभी रिसेंटली जो है मैंने कहा कि नहीं, आई विल डू दिस थिंग. मैंने इसमें मैं औरतों को प्रिपेयर कराऊंगी NLP के थ्रू और इसके थ्रू के कैसे Wow. करना है. राइट. So Wow. we will have a go to person कि भाई जिसको हम भेज सकते कि यार go do your inner work and then come to us for birth. We need women to hold each other and then miracles happen.
This is so amazing. उसकी पूरी टीम आई है, meaning all of her friends of NLP and teachers have come, attended this session. I'm so glad, and we are also here. We Yeah. supported her with the birthing perspective, and they supported her to, live her life. I'm so glad. Yeah, Sister Manisha, you want to say something? Yeah, so we have known Rahat from a long time, but Barakallahu Feek Rahat, so beautiful to hear your remarkable journey. Like, ये तो नहीं मालूम था. And Sneha, you were hosting this, तो ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था. So yeah, we are So- almost good friends, like Maria, Sister Manisha, and हम तो बहुत अच्छे friends हैं. But ये cycle ऐसे You have मिलना been था हम लोग. pivotal. You have been pivotal to my taking a decision of coming to Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, Alhamdulillah, our journey goes back a very long time ago, like more than 15 years, like से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. So it is surprising, Barakallahu Feek, and Rahat sister, Jazakallahu khairan for the share. It was very, very beautiful. More While I was power to you. while I was making the, like, I was post I do post the birth stories my way when I do this, and literally I posted her story. I texted Tapasya, are you looking at Rahat's story? And I was crying, and she said it's beautiful. I was like, faith का level मतलब इसको कैसे निकालते हैं? I'm crying while I'm posting it. मतलब और मेरे लिए writing the story is very intense, क्योंकि जब तक मैं वो जर्नी डिस्क्राइब करते करते बर्थ तक आती हूँ ना, आई फील दैट आई वाज देयर. मेरे को पूरा वही थकान वैसे ही वापस आता है. इट्स सो इंटेंस when I write. So मेरे लिए I was crying that moment while I was sharing her story on Instagram, while in my style. But and जब आज मैंने उसका डेथ पर्सपेक्टिव सुना, ये मुझे नहीं पता था. ये सिर्फ शायद तपस्या से बात हुई होगी या उसने खुद अपने इनर वर्क में किया है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था. एंड तपस्या एंड आई वी बिलीव दैट हमको बर्थ प्लान के साथ साथ में डेथ प्लान भी बताना बहुत जरूरी है. विच एवर बर्थ यू चूज, अगर हॉस्पिटल है या होम बर्थ है, कि ये भी एक फैक्टर है विच इज रियलिटी. थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्लास का माहौल, बट वो जरूरी है. एंड हाँ, एंड जब राहन ने बोला कि दो औरतें सेम पैराडाइम में काम कर रही है मदर्स को बर्थ करने में, वो दोनों की लैंग्वेज में कितना डिफरेंट है और डिफरेंस आता है. तो वही तपस्या ने दिया. और तो ही जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को ये मेंटर मेरी काम आएगी. बिकॉज व्हेन शी वाज शोइंग प्री एक्लेम्सिया, ब्लरीनेस दिख रहा था, चक्कर आ रही थी, बीपी जा रहा था और स्वेलिंग हो रही थी. एंड मैं सिर्फ एक इवेंट अटेंड करके मैं आ रही थी, फ्लाइट से उतरी, एंड शी वाज सेंडिंग ऑल दिस मैसेज. तो मुझे सिर्फ केएल याद आई, तो केएल ने हैंडल किया. फिर मुझे एक मोमेंट के बाद तपस्या याद आ रही है ना, तपस्या से बात करो, इट विल बी गुड फॉर यू. सो आई एम ग्लैड लाइक वी हैव सच वुमेन इन इंडिया हु कैन डू दिस. अब ऐसा अब्रॉड के लोग सोच रहे हैं काश हम इंडिया में होते, तो एटलीस्ट हमारी बर्थ इजी हो जाती. बट वी हैव आवर ओन स्ट्रगल्स, बट या एटलीस्ट वी आर फार बेटर देन द अदर कंट्री पीपल. Yeah. अभी I think Mubina is there. So when you say कि death के बारे में बोलना session में uncomfortable हो जाता है, I always remember Mubina when I'm talking about birth and death, and when people ask, people tend to throw statistics कि maternal mortality कम नहीं हुई है क्या हॉस्पिटल बर्थ के बाद, क्योंकि काफी डाउट लोग. एंड देन व्हेन आई वांट टू टेक आउट दिस टॉपिक दैट I have stillbirths and I have witnessed death in births as well, and वो तो मतलब होता है, कहीं भी हो सकता है. सो वो जो चीज हमेशा मुबीना का एग्जाम्पल मुझे बहुत ताकत देता है. It's like I have seen the clarity, the faith, and the surrender and the grace with which to accept the divine will. वैसे मैंने उसकी आंखों में देखा है. I will never forget her eyes, and that's what gives me the strength to say कि worst चीज क्या है उसके बारे में सोचो, and then when you go beyond that, nothing is difficult. Birth just happens. Birth में कुछ नहीं करना पड़ता. Your body is anyway going to do that. It's only your fears and doubts that you that you overcome.
So yeah, thank you so much, wise ladies. See you all in the next story session. Till then, keep motivating, inspiring others. Rahat, I want you to be one of the childbirth educators like us, ताकि हम ये काम और आसानी से कर सके कि हाँ रत्नागिरी में बर्थ करना है, राहत इज देयर, राहत हैंडल इट इंशाल्लाह. Inshallah. So Sneha, yeah, I would just want as a good student, I हाँ, want Bushra to say something. Can अच्छा, I? is she there? Yes, Yeah, she's there, but I don't know whether she's present or not. yeah, she's Yeah, there. yeah, I'm here. I've been listening everything. And Allah Mubarak, I mean, I was awestruck by the story. Though I've been listening to your part, every bits and pieces, but then to go through the story in this manner, it was like, man, Allah gave you that strength. Seriously, I mean, I would have never thought in this manner somebody would have used these techniques and all this to this purpose. I mean, this is beyond my imagination of what you have gone through and what you have done. And Allah Mubarak, I mean, Allah gave this strength to you. And indeed, during these hard times, we find a purpose. And uh, basically, I think during all this, what actually Allah was bringing you closer was to your purpose and definitely to understanding how, you know, the entire, I feel I have had two cesareans and I didn't knew anything about all this. So it was all that I was just listening like, what if I would have known? But I know myself, if I would have known all that, I don't know if I would have had that courage of taking up that step. But I feel that uh, it's a blessing to. I remember the last time we had conversation about the Rahat, that it is a blessing to understand, not only understand, but go through the divine process of I remember you told me कि उषा I just want to know कि वो क्या नेचुरल तरीका मेरी मेरा मेरा वो है मेरा एक अंदर से जुस्तुजू है एक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं जानना चाहती हूँ कि even animals go through and everybody goes through that I want to know what is the natural way how you go through this and that desire that you had Allahu Akbar I mean I feel everybody does not have it and you were blessed to have the desire and go through this journey and come out with this Allahumma barik, I mean, be by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, the strength that Allah gave you. And definitely, I would surely strongly recommend you to work with Sister Sneha and educate women because definitely, एक तुम्हारी वाली बात मुझे बहुत struck करी कि how the doctors in the hospital are actually uh, putting women go through fear and the fear that uh, uh, is of death. That's the only fear, no? And currently, I lost a very close acquaintance. She's pretty young in her in the hospital. Supposedly, सब लोग अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल तो घर वालों यही वो डाल देते हैं ना कि she was insisting on natural this thing, not natural but the normal delivery, and hence we could not manage and severe blood loss की वजह से she lost her life very recently, just a month or two back. तो जब तुमने ये बात रात बोली ना कि मौत तो किसी की हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में भी आ सकती है और आने को घर में भी आ सकती है दैट वाज सच अ दिस थिंग एंड हाउ द हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग उनका वही स्ट्रैटेजी होता है पुट द फैमिली एंड पुट द मदर इनटू द फियर पोजीशन एंड फियर के मारे वो लोग फिर कुछ भी करेंगे सो डेफिनेटली वर्किंग विद फेथ रादर आई अभी दो एक दिन दो नहीं 2-3 महीने के पहले की बात है I met a woman, she was a client, she came up for some emotional issues. She said 2 या 3 सिजेरियन के बाद उनका नेचुरल होम बर्थ हुआ है दैट इज शी सेड सिजेरियन तो क्या ही था इतना मेरी जान निकल गई और नेचुरल होम बर्थ में कहती आधा घंटे में या 1 घंटे में आई वाज कंप्लीटली डन विद इट आई वाज लाइक मैंने सोचा मेरे को पता होता ये स्टोरीज तो मैं भी शायद कुछ सोच सकती थी बट अभी अल्लाह अभी अकबर भी आई टाइम मीन गया नहीं है बुशरा आपा. आई एम आई आई एम डन विद इट So टू we have सिजेरियंस Mubina जिनके 4 C sections हुए and she has birth with a person. शायद जिसकी आप बात करिए वो भी मेरी क्लाइंट ही है जिन्होंने 2 C section के बाद बर्थ किया. So alhamdulillah, आई डोंट people नो are वो birthing. इंडियन ही है वो मुझे अच्छा. पता नहीं कहाँ से बिलोंग कर रही थी मुझे अभी भी याद भी नहीं ना या नाम याद है ना कुछ है डेफिनेटली आपकी हो सकता है आपकी स्टूडेंट वो हो तो आई फील अल्लाह चूजेस दिस इज द वे अल्लाह चूज पीपल probably you were choosing to you were chosen to
be there, show that strength, and through you, I don't know how many women are going to be helped, because definitely C-sections has its own side effects, and on the baby and on the mother and the body of the mother. So kudos to both of you, to the team, Yeah. whosoever is there. To Alhamdulillah. you. Alhamdulillah. You were also the team, Alhamdulillah. Bushra. Yeah. La hawla wa la quwwata illa billah. I don't know how I became a part of it. I really don't know. But yeah, alhamdulillah, Nama Bal. That's all from my side. Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you, Rahat, for giving us this fresh perspective so that we can work more hard, and the mothers can think what is their purpose in life, and what birth means to them, what birth means to the baby. Like, so all of that, inshallah. Thank you so much. See you next story session. Bye bye.